Hello students and welcome to my channel. In today's video we shall do class 5 chapter 6 verbs. इस वीडियो में हम verbs के बारे में पढ़ेंगे, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है एंड उसके साथ ट्रांजिटिव एंड intransitive verbs क्या है पढ़ेंगे एंड हाउ टू आइडेंटिफाई डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन sentences. So let us start. Veena spilled water in the classroom yesterday. Akshay demonstrated his painting in the exhibition. The resource person interacted with the students. Second auction expected to be a low-key affair. अब इन सारे 4 sentences में जो green में highlighted है spilled, demonstrated, interacted and expected, these are all your action words or they are your doing words. Now, what are doing words? जो हमें बताते हैं कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का वो क्या कर रहा है. तो पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है. सब्जेक्ट का मतलब जो हमें सेंटेंस में किसके बारे में क्या बातचीत हो रही है बताता है हमारा सब्जेक्ट. सो वीना is your subject. What is the action being done by Veena is your verb. So Veena spilled. So the verb is spilled. Akshay demonstrated. किसके बारे में बात हो रहा है? Who is the subject? Akshay. अक्षय ने क्या किया? Demonstrated his painting means showcased his painting in the exhibition. Now, the resource person interacted with the students. Now, who is the subject? Resource person. What is the action being done by the resource person? Interaction. Interacted is the verb. Second option expected to be a low-key affair. So expected is your verb. Now the highlighted words, these are verbs. Verb is a word that shows an action, habit or state of being. You cannot make a sentence without a verb. कोई भी वाक्य एक verb या action word के बिना अधूरा है. ठीक है. और हमारा जो वर्ब है वो क्या दिखाता है? कोई भी एक्शन, हैबिट, आदत या स्टेट ऑफ बीइंग. सो एग्जांपल्स देखेंगे. शी ड्रैंक मिल्क क्विकली. सब्जेक्ट कौन है? शी. व्हाट इज द एक्शन शी इज डूइंग? ड्रैंक. ड्रैंक इज द वर्ब. शी इज इल. अब देखिए शी सब्जेक्ट है और इज जो है हमारा वर्ब है. इज, एम एंड आर जो है ना स्टूडेंट्स, दे आर योर हेल्पिंग वर्ब्स. Okay, they in addition to the main verbs help in clear understanding of the sentences. He was in the garden. अब was भी जो है आपका एक helping verb है. ठीक है. Was, were, ये is, am, are, ये सब आपके helping verbs में आते हैं. They hid in the corner. Who hid in the corner? They subject. Hid action उन्होंने किया hiding का. So hid is the verb. Mary makes tasty cookies. किसके बारे में बात हो रही है? मैरी के बारे में बात हो रही है. What does she do? She makes. तो action is makes. She does her homework on her own. She is the subject. Does is the helping verb again. And does is the verb. Verbs are of two types, transitive verbs and intransitive verbs. Verbs कितने तरह के हैं बच्चों? 2 तरह के. Transitive verbs and intransitive verbs. What are transitive verbs? The word transitive itself has the word transition, मतलब transfer होना. So a transitive verb is one that requires an object to express a complete thought. The action done by the subject passes on or affects the object. हमारे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वर्ब इज द एक्शन विच इज बीइंग डन बाय द सब्जेक्ट एंड जिसके ऊपर वो एक्शन हो रहा है सब्जेक्ट के द्वारा वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट. सो द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट passes on or affects the object in the sentence. Example देखेंगे. अभी hammered the nail into the wall. So हमें transitive verbs में 3 चीजें आइडेंटिफाई करना है. एक आपका सब्जेक्ट, दूसरा आपका वर्ब और तीसरा आपका ऑब्जेक्ट जिस पे एक्शन हो रहा है, जिसके द्वारा एक्शन हो रहा है, अभी के द्वारा सब्जेक्ट. क्या एक्शन हो रहा है? हैमरिंग का. हैमर्ड इज योर वर्ब. किसके ऊपर हैमरिंग हो रहा है? वॉल के ऊपर. एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? वो हमारा ऑब्जेक्ट है एंड दैट हियर इज योर वॉल. विवेक जम्प्ड ऑन द बेड. किसके द्वारा एक्शन हो रहा है? विवेक सब्जेक्ट.
क्या एक्शन हो रहा है? जंपिंग का। जंप्ड इज द वर्ब। किसके ऊपर जंप कर रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? बेड। सो दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई योर ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स देखते हैं। Intransitive verbs does not require an object to express a complete thought. The word transitive means passing over or affecting something else. अगर सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन किसी और चीज के ऊपर इफेक्ट दिखा रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अगर एक वर्ब एक्शन करने के बाद उसका कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है देन इट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। द बॉय जम्प्ड। अब यहाँ पर देखिए ट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस में तीन चीजें होनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पर सिर्फ देखिए द बॉय जम्प्ड। कौन जंप किया? किसके द्वारा एक्शन हो रहा है? सब्जेक्ट बॉय। क्या एक्शन हो रहा है? जंपिंग का। जंप्ड इज द वर्ब। कहाँ पर जंप किया? द बॉय जंप्ड ऑन द बेड, ऑन द ट्री, ऑन द बीच। कहाँ पे? कुछ नहीं पता है। सो दिस इज अ इंट्रांजिटिव सेंटेंस and jumped is your intransitive verb. The wind blows, subject wind, blows verb, object कुछ नहीं है, इसीलिए ये आपका intransitive verb है। वर्कशीट 1 करेंगे। सर्कल द verbs for Freddy the frog and write whether they are transitive or intransitive on the given lines. My uncle gifted me a watch. अब ऐसे वाले सेंटेंसेस में बच्चों पहले आप ट्रांजिटिव के लिए ढूंढेंगे तीन चीजें, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पहला वाला देखिए, माई अंकल गिफ्टेड मी अ वॉच। इज देयर अ सब्जेक्ट? किसके द्वारा एक्शन हो रहा है? हाँ, अंकल। क्या एक्शन हो रहा है? गिफ्टिंग का। गिफ्टेड इज योर वर्ब। क्या गिफ्ट हो रहा है? कुछ है? यस, वॉच। सो ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है एंड सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट अंकल, वर्ब गिफ्टेड, object watch. So this is transitive. The clock ticks all day and night. The clock subject ticks verb. कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सो दिस इज इंट्रांजिटिव। द हंग्री लायन रोज लाउडली। यहाँ पर लायन आपका सब्जेक्ट है एंड रोज इज योर verb. There is no object, so it is intransitive. The boy flew a colorful kite. Subject कौन है? Boy है। क्या एक्शन कर रहा है? फ्लाइंग का। Flew is the verb. क्या फ्लाई कर रहा है? क्या हमें पता है? हाँ, a colorful kite ऑब्जेक्ट है। So this is a transitive verb. Mr. Roy teaches music. Mr. Roy subject and teaches is your verb. There is no object. So this is intransitive verb. We are arranging a class picnic. We subject हम एक्शन कर रहे हैं। क्या वर्ब है? अरेंजिंग का। क्या अरेंज हो रहा है? क्या हमें पता है? हाँ, एक क्लास पिकनिक। सो जो एक्शन सब्जेक्ट का किसी ऑब्जेक्ट पे दिखा रहा है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। सो दिस इज योर ट्रांजिटिव वर्ब। सैमी प्लेज द गिटार इन द बैंड। सैमी सब्जेक्ट, प्लेज वर्ब। क्या प्ले करता है? ऑब्जेक्ट कुछ है? हाँ, है गिटार। सो दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। The car bumped into the tree. The car subject. एक्शन क्या है? बम्पिंग का। एंड व्हाट डिड इट बम्प इनटू? कुछ पता है हमें? हाँ, द कार बम्प्ड इनटू एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड द ट्री। सो दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। द बेबी वाज स्नोरिंग सॉफ्टली। बेबी सब्जेक्ट, स्नोरिंग इज द एक्शन, वर्ब, देयर इज नो object, so it is intransitive. The rain pattered on the window pane. Rain subject, पैटर्ड इज द वर्ब, ऑन द विंडो पेन किसके ऊपर एक्शन हो रहा है? विंडो पेन के ऊपर। सो इट इज ट्रांजिटिव। द लिटिल बेबी क्राइज। बेबी इज योर subject, cries is your verb. There is no object, so intransitive. Pretty flowers bloom in the garden. Pretty flowers, flowers is your subject, bloom is your verb. There is no object, so this is intransitive. Worksheet 2. Make 10 sentences, 5 transitive and 5 intransitive using the following verbs. One has been done for you. इसके आंसर्स मैंने आपको लिख के बताया है। ट्रांजिटिव वाले में आपके पास होगा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव में ओनली सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा। जैसे देखिए क्लीन में ही सब्जेक्ट है, क्लीन्स वर्ब है, रूम आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। सिट में शी सब्जेक्ट, आस्ट इज योर verb and sofa is the object. One में he subject, one verb, race is your object. Sing में she subject, sang, verb, song, object. Found, she subject, found is your verb, dollar is your object. Sleep वैसे she subject, sleep, verb, mattress आपका है object. The child began to cry after she dropped her ice cream. Child subject, cry verb, ice cream is the object. ठीक है।
तो इस हिसाब से आप ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जांपल्स देख सकते हैं। Now next we shall read direct and indirect objects. What are direct objects and what are indirect objects? Direct word itself suggests that a direct object is directly affected by the action of a verb. Action of a verb से जो object directly affect हो रहा है उसे हम direct object बोलते हैं. And it answers the questions what or whom. An indirect object is indirectly affected by the action of a verb. It answers the questions to whom, for whom and for what. एग्जाम्पल अनुषा हिट याना विद द क्वेश्चन। अब देखिए अनुषा हमारी सब्जेक्ट है, उसने हिटिंग का एक्शन किया जो वर्ब है। किसको हिट किया? याना को हिट किया। लेकिन किसके साथ हिट किया? याना के हाथ में क्या था वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके साथ उसने याना को सॉरी अनुषा के हाथ में क्या था एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो उसने याना को उससे मारा। सो याना के हाथ में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अनुषा के हाथ में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो है कुशन। सो कुशन इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद विच अनुषा इज हिटिंग याना योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर सिर्फ अनुषा हिट याना होता तो अनुषा इज हिटिंग याना इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। ही ऑफर्ड चिप्स टू मी। अब ही सब्जेक्ट, ऑफर्ड चिप्स, चिप्स है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या ऑफर किया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको ऑफर किया? मुझे ऑफर किया। सो मी इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही पंच द बैग फोर्सफुली। ही पंच द बैग फोर्सफुली किसके साथ? कुछ मेंशन नहीं है। सो ही पंच द बैग हो जाता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके। अंडरलाइन the direct objects with the blue colored pencil and the indirect objects with the green colored pencil. Worksheet number 3. Has Uncle Sam sent you the parcel? अब यहाँ पर देखिए अंकल सैम सब्जेक्ट है, सेंट वर्ब है, यू इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पार्सल जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। सिमी रेड हर लिटिल डॉटर एन एक्साइटिंग स्टोरी। व्हाट डिड आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट डिड सिमी रीड हर लिटिल डॉटर, वो आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो indirect object is your exciting story and she is reading directly to her daughter. So direct object is your daughter. Shiv's uncle gifted him a multifunctional laser printer. So directly gifting हो रहा है him को, so him is your direct object. क्या gift हो रहा है? A multifunctional laser printer. Sanya has bought her dog a new collar. Sanya subject, bought is the verb, her dog उसके डॉग के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या खरीदा? अ न्यू कॉलर। विल यू गेट अस फ्री पासेस ऑफ द आईपीएल? सो यू इज द सब्जेक्ट, गेट इज द वर्ब, अस इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फ्री पासेस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे ही आप 6, 7, 8, 9 को करें। So with this, we come to the end of your verbs chapter. If you have any doubts on this, please let me know in the comment section. And like, share and subscribe कीजिए। नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।